Hello students, myself Rajesh Kumar Sharma, your biology teacher. Today we are going to discuss lysosomes. As you know, we are discussing cell organelles. In our previous lecture, we have discussed about Golgi bodies. Today we are going to discuss lysosomes. Let's start. लाइसोसोम्स वैसे थोड़ा जान लीजिए। लाइसोसोम जो है, ठीक है, ये बनता कैसे है। गाल्गी बॉडीज़ जो है हम लोग डिस्कस किए थे, ठीक। तो गाल्गी बॉडीज़ में 3 स्ट्रक्चर बेजाइकिल्स जो पाए जाते हैं, सिस्टर्नी पाई जाती है। तो सिस्टर्नी जो होता है, ठीक है, उससे जो है आपके बेजाइकिल्स बनते हैं। सीस एंड ट्रांसफेज देखे हम बताए थे, ठीक। तो जो बेजाइकिल्स होते हैं, ठीक है, वही जो कन्वर्ट होते हैं किसमें, लाइसोसोम्स में, ठीक। इन जनरल जो है लाइसोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं। तो लाइसोसोम्स आर फाउंड इन एनिमल सेल्स, प्रोटोजोअन्स, फंजाई एंड ओनली इन सम प्लांट्स। These are however not present in prokaryotic cells and mature mammalian RBC red blood cells. A cell may have a number of lysosome means जैसा हमें पहले ही पता है कि प्रोकैरियोटिक जो सेल होते हैं, ठीक, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली नहीं पाए जाते हैं। और ये जो है आपका लाइसोसोम मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली है, इसलिए ऑब्वियसली कि प्रोकैरियोटिक सेल में लाइसोसोम नहीं पाया जाएगा। और मैच्योर आरबीसी रेड ब्लड सेल्स में नहीं पाया जाता है, ठीक। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स आर टीनी में छोटे, स्फेरिकल मेम्ब्रेन बाउंड बेजाइकिल्स। अब देखिए यहाँ पे जो है मेम्ब्रेन बाउंड बेजाइकिल है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है। एज वी हैव डिस्कस्ड about mitochondria and Golgi body, they are double membrane bound cell organelles, but here lysosomes are only single membrane bound cell organelle. Clear? Lysosomes are single membrane bound cell organelles. These vesicles are different sizes and shapes. They are formed by Golgi apparatus. The lysosomes contain powerful digestive enzymes. They are called as hydrolytic enzymes for digestion of various organic materials. These enzymes are made by rough endoplasmic reticulum RER. However, all these enzymes may not occur in single lysosome. में सारे के सारे एंजाइम एक ही लाइसोसोम में नहीं पाए जाते हैं, और एक सेल के अंदर कई जो है लाइसोसोम्स हो सकते हैं, ठीक। नाउ फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम्स हेल्प इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। Lysosome help in intracellular digestion. They are like a waste disposal system of cell that keeps the cell clean by digesting any foreign material such as bacteria as well as any other microorganism or dead cell organelles. Therefore, they are also known as digestive bags. Second function, they work in defense against infection by bacteria and viruses by digesting them. Third one, during starvation, lysosomes help in breakdown of stored protein. Stored protein
fat, complex carbohydrate, thereby providing energy to the body. They are involved in breakdown of cells. Lysosome help in removal of dead cells. For example, when a cell gets damaged, they burst and enzymes digest their own cell by the process called autolysis. Therefore, they are also called as disposal bags or suicide bags of a cell. They help in recycling of metabolites for the formation of new organelles. Hence, they are also named as recycling centers. One more thing you should know, एक और बात जो है लाइसोसोम के टाइप्स. लाइसोसोम्स एक्चुअली जो है इनके टाइप जो है 4 टाइप को डिवाइड किया गया है, जो कि आप हायर क्लास में पढ़ेंगे. फर्स्ट वन दैट इज़ प्राइमरी वेजाइकिल, सेकेंड वन सेकेंडरी वेजाइकिल, थर्ड वन रेजिडुअल बॉडीज एंड फोर्थ वन सुसाइडल बैग. मीन्स लाइसोसोम जो है 4 तरह के होते हैं. नाउ लेट अस डिस्कस प्लास्टिड्स. प्लास्टिड जानते हैं क्या होते हैं. प्लास्टिड्स आर पिगमेंटेड बॉडीज. दे हेल्प इन प्रोवाइडिंग कलर ऑफ द प्लांट. जनरली प्लास्टिड्स कहाँ पाए जाते हैं, प्लांट में पाए जाते हैं. तो जो भी आपके जो है प्लांट में फ्लावर कलर, लीफ कलर और फ्लावर में जो भी जहाँ भी कलर की रिक्वायरमेंट होती है, दैट कलर इज प्रोवाइडेड बाय प्लास्टिड्स. दे आर पिगमेंटेड बॉडीज. तो अकरेंस, प्लास्टिड्स आर फाउंड ओनली इन प्लांट्स एंड इन सम फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट. दे आर एब्सेंट इन एनिमल्स. एज यू नो, the term plastid first coined by German biologist Ernst Haeckel. तो प्लास्टिड टर्म पहले कौन दिया था, अर्नस्ट हैकेल, इन 1866. 1866 में जो है अर्नस्ट हैकेल ने प्लास्टिड टर्म दिया था. नाउ स्ट्रक्चर. प्लास्टिड्स आर लार्जेस्ट डबल बॉडीज या डबल मेम्ब्रेन बाउंड cell organelles present in the cell cytoplasm. Like mitochondria, plastids are semi-autonomous bodies. As I already told you that only 2 cell organelles are semi-autonomous bodies. First one mitochondria, second one plastids. Then plastids are semi-autonomous cell organelles. They process their own genetic material and ribosome. मीन्स इनके पास जो है अपना जेनेटिक मटेरियल और राइबोसोम होता है. दे पोसेस देयर ओन जेनेटिक मटेरियल एंड राइबोसोम्स. देयरफॉर दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ देयर ओन जेनेटिक मशीनरी. ए प्लास्टिड शोज 2 डिस्टिंक्ट रीजन्स. व्हाट आर दोज? ग्रेना एंड स्ट्रोमा. ग्रेना आर stacks of membrane bound flattened discoid sacs containing chlorophyll molecules. ये जो है कॉइन की तरह जो एक दूसरे के ऊपर जो है, ठीक है, ये पड़े होते हैं. इनको ग्रेनम बोलते हैं. एक को पूरे को पाइल को जो है कॉइन की तरह जो होता है उसको ग्रेना बोलते हैं. और एक जो है ग्रेनम और थैलाकॉइड बोला जाता है. ठीक, इसी के अंदर जो है आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. दीज मॉलिक्यूल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो एक्चुअली ग्रेनम और थैलाकॉइड जो है इसी के अंदर जो है जो क्लोरोफिल होता है वही हेल्प करता है किसमें, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, इन प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड. द होमोजीनस मैट्रिक्स इन विच ग्रेना आर एम्बेडेड इज नोन एज स्ट्रोमा. टाइप्स ऑफ प्लास्टिड. तो प्लास्टिड को एक्चुअली डिवाइड किया गया है, ठीक है, 3 कैटेगरीज में. कौन कौन से हैं? डिपेंडिंग ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ पिगमेंट, प्लास्टिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स: ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट. तो ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं? ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस प्लास्टिड्स एज दे
कंटेन नो पिगमेंट, मीन्स जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वो कलरलेस होते हैं, इनमें कोई पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। दे सर्व एज द साइट ऑफ फॉर स्टोरेज ऑफ स्टार्च, लिपिड एंड प्रोटीन्स। दे आर यूजुअली फाउंड इन स्टोरेज ट्यूबर्स, एंडोस्पर्म एंड कॉटिलिडन्स। तो जो है ट्यूबर, जो आलू देखे होंगे, ठीक है, गंजी देखे होंगे, ठीक, स्वीट पोटैटो, तो ये सब जो है ट्यूबर्स होते हैं। एंडोस्पर्म कोकोनट का देखे होंगे, ठीक, कॉटिलिडन्स, तो ये सब कलरलेस होते हैं और इनमें पिगमेंट नहीं प्रेजेंट होता है, तो दे आर कॉल्ड है ल्यूकोप्लास्ट। नाउ क्रोमोप्लास्ट, they are colored pigments containing yellow, orange, brown or red pigments. They give brown color to the plants other than green. They are mostly present in petals of flower and fruits. तो जो भी आपके फल का कलर होता है, फ्लावर का कलर होता है, इसको जो है कौन पिगमेंट प्रोवाइड करता है या प्लास्टिड, दैट इज क्रोमोप्लास्ट। नाउ क्लोरोप्लास्ट, they are disc shaped plastid containing green colored pigments called chlorophyll. They also contain carotenoids. They are mostly found in exposed parts of the plant, that is leaves. Chloroplast trap solar energy and absorb carbon dioxide for manufacture of food during photosynthesis. Chloroplast contain DNA and have the capacity to divide. Now structure of chloroplast. Like mitochondria, this is also double membrane bound cell organelles. Similar to mitochondria, each chloroplast is bounded by two smooth membranes, that is an outer membrane and inner membrane. Each chloroplast has two distinct regions, grana and stroma. Grana singular क्या हो जाएगा, granum, as I told earlier, are sticks of membrane bound flattened sac called lamellae. तो कॉइन लाइक जो है, ठीक है, कॉइन लाइक पाइल हो जाते हैं ढेर, जिनको कि लैमेली कहते हैं, ठीक, विच आर पैक्ड इन पाइल्स and are named as thylakoids. In other words, the grouped thylakoids are called lamellae. जो ग्रुप जो है, ठीक है, पाइल के रूप में जो पाए जाते हैं थैलाकॉइड, उनको क्या बोलते हैं, लैमेली। द थैलाकॉइड्स आर मेन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड आर एम्बेडेड इन मैट्रिक्स आर स्ट्रोमा। द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पोसेसेस क्लोरोफिल, मीन्स थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, कैरोटिनॉइड एंड सम अदर पिगमेंट्स। ग्रेनम इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। स्ट्रोमा लाइक द इंटीरियर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट एज क्लोइडल कॉम्प्लेक्स आर मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स कंटेन photosynthetic enzymes, starch grains, DNA and ribosomes. The stroma is the site of dark reaction during photosynthesis. Now functions of chloroplast are plastids. Chloroplast are green plastids हो गया, and they help in photosynthesis and thus are involved in the process of making food. ठीक है, ओके, मीन्स मेन फंक्शन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस और प्रिपरेशन ऑफ फूड। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वी विल डील इन आवर नेक्स्ट क्लास।